Hey everyone, today we are going to make something bigger, that is artificial intelligence game. In this game, we are going to develop a little part of AI by using the Python in which the computer acts as a player and you will play against him. And this is the game that is going to be very difficult to play as you cannot win against the computer. And I hope you will enjoy this module and enjoy this game as this is a part one of our video. We are doing this in several parts and enjoying the game. So first of all, let's talk about what is AI. I hope most of you excited by the name AI, but for those who did not know what is AI stands for artificial intelligence. Like in human, let's suppose someone is dying, as you all know, the corona and all stuff. So at that situation, how we help that human is what our intelligence. For example, अगर हम common सा कोई example है तो इट वॉज बार्गेनिंग. लेट सपोज आप किसी शॉप पर गए कुछ परचेज करने बट आप अकेले नहीं, आप अपनी मॉम के साथ गए हो. तो ऑब्वियसली अब वहां पे क्या होने वाला है सब जानते हैं, बार्गेनिंग होगी. सो अब मॉम ने अब अपनी अकॉर्डिंग प्राइस लगवाना है शॉपकीपर से. लाइक उन्होंने 300 का बोला तो दे वर लाइक शी वाज लाइक कि नहीं भैया 100 रुपए या 50 रुपए, लाइक हाँ इतना ही होगा. तो वो अपनी इंटेलिजेंस का यूज करेंगे. तो ऐसे ही जब कंप्यूटर अपनी दिमाग का यूज यानी कि अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके कोई टास्क परफॉर्म करेगा तो उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो अ कॉमन एग्जांपल इज स्मार्ट कार लाइक टेस्ला. Tesla, we all know it was self-driving car. It stops its own, it turns its own, and it's doing its own work its own. So it is totally based on artificial intelligence. So as being a programmer, every programmer knows what is artificial intelligence and everyone thinks that once in his or her life, I'm gonna develop a project on artificial intelligence. But the actual or ideal, or we can say the ideal artificial intelligence is still beyond our reach. For example, in the movie Terminator, the Skynet was developed. That was an ideal artificial intelligence or actual artificial intelligence if you have seen the movie. The AI we have developed so far is limited, like Siri, Bixby, or Google Assistant. As you can see here, the Google Assistant. So this is limited. So they are not proper AI, they are instruction based AI. So they are not ideal AI. So let's move to the project now. Here we are going to develop a project in which we are going to develop a game tic-tac-toe. So which is artificially based on a little artificial based. So before developing a game, let's take a overview of the game. Yes, do you want to play? Yes. So this is a game. So I want to let's अगर मान लो मुझे यहाँ पे अपने इस पोजीशन पे अपना x मूव करना है तो आई जस्ट सिंपली राइट 3. यहाँ पे मेरी आ गया x और कंप्यूटर ने अपना पोजीशन O प्लेस किया है अपने अकॉर्डिंग. मैं अपने कंप्यूटर को बीट करने के लिए अब यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ सपोज 7. यहाँ पे आ गया और कंप्यूटर ने यहाँ, मैं कंप्यूटर को बीट करने के लिए यहाँ पे 9 पे सपोज करता हूँ और ऐसे ऐसे ये गेम कंटिन्यू चलती रहेगी. तो ये है बेसिक गेम. तो ये जो कंप्यूटर का जो मूव है ये है हमारा एआई. कंप्यूटर अपना खुद का दिमाग यूज कर रहा है ताकि मैं जीत ना पाऊं या वो गेम टाई कर दे. सो दिस वाज एन एआई. सो बिफोर डेवलपिंग द गेम, लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक्स. अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स एंड एल्गोरिदम्स, कि अब इसमें हम क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करेंगे और क्या क्या एल्गोरिथम्स आएंगे. तो पहले हम बात कर लेते हैं प्रॉब्लम्स की कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. पहली प्रॉब्लम्स आती है हमें इनपुट फॉर लूप. जैसा कि आप लोगों ने अभी यहाँ गेम में देखा कि ये बार बार लूप चल रहा है, जब तक गेम खत्म नहीं हो रही तो लूप चल रहा है. तो ये हमारी पहली प्रॉब्लम है कि हमें लूप चलाते रहना चाहिए. सेकंड इशू आएगा हमारा बोर्ड का स्ट्रक्चर. बोर्ड का स्ट्रक्चर जितना हो सके उतना मिनिमलिस्टिक होना चाहिए ताकि वो इतना देखने में अच्छा भी लगे और ज्यादा बेकार सा ना लगे. और तीसरी हमारी आएगी इनपुट. 9 वेरिएबल्स आएंगे क्योंकि हमें सिर्फ 9 वेरिएबल्स ही डालने हैं, क्योंकि वहां पे तो 9 तक ही ऑप्शंस होते हैं. लाइक यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो बस 9 ना, 9 से ज्यादा ना 9 से कम. और ऑब्वियसली बात है हमें यूजर मूव भी लेके चलना है अपना, हमें यूजर मूव बनाना ही बनाना है. सो इसके बाद हमारा आ जाएगा, अगर यूजर मूव आ रहा है तो ऑब्वियसली हमारा कंप्यूटर का मूव भी आएगा. जिस कंप्यूटर का मूव को हम और भी कुछ कह सकते हैं वो है हमारा एआई. हम उसे एआई भी कह सकते हैं. सो इसके बाद हमारा कंप्यूटर मूव भी आ गया. ओ यूजर मूव तो
ओके, यस। अब हमारी 6 प्रॉब्लम आ सकती है, इज एनी फ्री स्पेस। हमें चेक करना पड़ेगा कि कोई स्पेस खाली है या नहीं है वहां पर। ऑब्वियसली बात है, ये हमें कॉन्टिन्यूसली चेक करते रहना पड़ेगा। और इसके बाद हमारी 7th प्रॉब्लम आ सकती है, हमें विनर डिसाइड करना है कि कौन जीत रहा है, विनर कंप्यूटर जीत रहा है या यूजर जीत रहा है। और विनर से पहले भी हमारे कुछ टास्क होंगे, जैसे कि पोस्ट विनर वर्क। पोस्ट विनर वर्क में या पोस्ट वर्क आफ्टर वर्क कर सकते हैं, पोस्ट वर्क आफ्टर विनर। कि अब आफ्टर विनर पे हमें कंप्यूटर क्या डिस्प्ले कर रहा है कि एक्स जीत रहा है या वाई जीत रहा है या दोनों की गेम टाई हो रही है। लाइक जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, ये रही गेम। तो अब मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ और कंप्यूटर का मूव आ रहा है, और यहाँ पे मैंने इसको 2 लिख के गेम खत्म कर दी। तो गेम यहाँ पे खत्म हो गई। तो यहाँ पे ये क्या दिखाना चाहिए इसको। तो यहाँ पे जैसे ये नहीं दिखा रहा, तो हम इसको आगे दिखाएंगे कि ये कैसे दिखाएगा। अब हमारी आती है एल्गोरिदम्स, कि हमारी जो प्रॉब्लम्स आ गई हैं, अब इन्हीं प्रॉब्लम पे हमें काम करके एल्गोरिदम्स बनानी है। फॉर एग्जाम्पल, पहली पहली एल्गोरिदम हम जो बनाएंगे वो हमारी होगी इनपुट की एल्गोरिदम, कि वो क्या इनपुट ले रहा है। दूसरी एल्गोरिदम डिजाइन ऑफ द बोर्ड। ऑब्वियसली बात है, हमारा बोर्ड अच्छे से बना होना चाहिए। और तीसरी हमारी एल्गोरिदम बनेगी, जो हमारी प्रॉब्लम आ रही है, इज फ्री स्पेस देयर। हम वो चेक तो करते रहना पड़ेगा ना कि फ्री स्पेस है या नहीं है। और हमारी आ सकती है हु इज द विनर। विनर कौन है, उसके लिए भी एक अलग से एल्गोरिदम्स बनेंगी। और एज यू नो, प्लेयर मूव, जिसे हम कह सकते हैं यूजर मूव। और प्लेयर मूव आ रहा है तो हमारा अगला कंप्यूटर मूव आएगा, उसके लिए भी हमें काम करना है। और कंप्यूटर मूव को ही हम कहेंगे अपना एआई मूव। ये हमारी आ रही है एआई मूव। और इतनी प्रॉब्लम तो सारी होगी। इसके बाद आएगी हमारी मेन लॉजिक, व्हाट वाज द मेन लॉजिक ऑफ द गेम। और हमारा टोटली इंटरफेस। तो हमें इन 8 चीजों पे इस गेम को बनाते हुए काम करना है। तो पहला होगा, तो आज हम इस वीडियो में इन 3 चीजों पे काम करेंगे, इनपुट, डिजाइन ऑफ द बोर्ड और इस फ्री स्पेस देयर। तो पहला, तो जल्दी से हम अपना जुपिटर नोटबुक खोल लेते हैं। आप जो चाहे खोल लीजिए, जुपिटर नोटबुक या पाइचार्म या माइक्रोसॉफ्ट विजुअल, जो मर्जी आपकी हो। तो हम यहाँ पे न्यू पाइथन फाइल बना लेते हैं। सो सो पहला था हमारा इनपुट। हमारी पहली इनपुट पे हमें काम करना है। तो इनपुट के लिए क्या है, बोर्ड में इनपुट आनी चाहिए। तो हम इसके लिए लिख लेते हैं बोर्ड, एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले लेंगे। इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग में जरूर होता है स्पेस देना, एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं होती। फॉर एक्स इन रेंज। रेंज की वैल्यू हमें 1 से लेकर 9 तक के इनपुट्स डालने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम रेंज की वैल्यू लेंगे 10, क्योंकि 0 इसमें इंक्लूड नहीं करना है और 10 आएगा। तो ये होगी हमारी बोर्ड की, ये हो गया हमारा इनपुट। लेकिन इनपुट क्या हो रहा है, बोर्ड में इनपुट तो आ गया, तो उसके लिए एक फंक्शन बना लेते हैं हम, इंसर्ट लेटर। अब इसके अंदर 2 पैरामीटर्स हम कॉल कर लेते हैं। पहला तो लेटर, कि क्या लेटर आ रहा है, एक्स आ रहा है या वाई आ रहा है। दूसरा उसकी पोजीशन, कि वो किस पोजीशन पे आ रहा है, 1 से लेकर 9 के बीच में पोजीशन, ये होती है पोजीशन। मैं आपको दिखा देता हूं, ये टिक टैक टो। तो y, ये हमारी पोजीशन 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारी पोजीशंस होती हैं। तो इन पोजीशन से हमें काम करना है कि कौन सी पोजीशन पे वो आ रहा है। तो इस पे हम कर देंगे बोर्ड पोजीशन और इज इक्वल्स टू, सॉरी, लेटर। ये तो हमारा हो गया इनपुट फंक्शन, कि ये हमारा इनपुट हो रहा है। तो अब हमारा सेकंड एल्गोरिथम किस पे काम करना है, हमें डिजाइन ऑफ द बोर्ड। बोर्ड का डिजाइनिंग मिलियन निश्चय करना चाहिए। आप जिस तरह से भी कर सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से किया हुआ। तो मैं अपने हिसाब से जो बोर्ड किया है मैंने, प्रिंट बोर्ड, और इसमें हम पैरामीटर पास कर देंगे बोर्ड का। तो इसके लिए करेंगे प्रिंट, एक एम्प्टी स्ट्रिंग आएगी 1 2 3 और सिंबल 1 2 3 एंड सिंबल 1 2 3।
ये आगे आएगा प्रिंट एम्प्टी स्ट्रिंग प्लस बोर्ड। मैं पहले इसको लिख लेता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये मैंने क्या लिखा है और क्यों लिखा है। प्लस एम्प्टी स्ट्रिंग प्लस बोर्ड, सॉरी पहले सिंबल आएगा। यस, ये आ गया मेरा सिंबल। अब आएगा बोर्ड। बोर्ड में वैल्यू हम पास कर देंगे 2 प्लस एम्प्टी स्ट्रिंग जिसके अंदर सिंबल, और फिर आएगा हमारा बोर्ड जिसकी वैल्यू पास कर देते हैं हम 3। ये हो गया। और मैं इसको पहले पूरा लिख लेता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये एक्चुअल में है क्या। ये सेम डिजाइन कॉपी एंड पेस्ट। सो ये क्या किया है मैंने, इधर दिखाता हूँ। ये फर्स्ट 2 लाइन ये है मेरा ये प्रिंट फंक्शन, ओके। और ये फिर एम्प्टी स्ट्रिंग, फिर ये बोर्ड की वैल्यू, एक थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस है, फिर यहाँ पे मेरी वैल्यू प्रिंट होगी बोर्ड वन मतलब 1 वैल्यू प्रिंट होगी, जो भी मैंने यूजर को 1 वैल्यू दी होगी, एक्स होगी या 0 होगी। फिर डिजाइन आ रहा है, ये सिंबल डिजाइन, फिर बोर्ड की वैल्यू 2 यहाँ, फिर डिजाइन, फिर बोर्ड की वैल्यू 3 यहाँ, फिर ऐसे ही सेम 2 डिजाइन यहाँ। अब एक ये लाइन प्रिंट होगी। अब एक लाइन को नीचे लिखूंगा और सेम ऐसे ही आपको यहाँ तक लिखना है पूरा। तो ये मैंने डिजाइनिंग इस तरह से की हुई है। सो सेम प्रिंट और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आई गेस इतना बहुत है। और इतना ये यहां से लेके इतना कॉपी पेस्ट। बस यहाँ पे वैल्यूज चेंज करनी है आपको। ये हो गई 4 हो जाएंगी वैल्यूज, क्योंकि अभी 4th टर्म है। ये हो गया हमारा 5 एंड ये हो गया हमारा 6। और सेम गोस फॉर हियर। ये हो गया हमारा 7, सॉरी ये हो गया हमारा 8 और ये हो गया हमारा 9। बट ऑब्वियसली बात है ये डिजाइन की जरूरत अब नहीं पड़ेगी, तो ये डिजाइन हम हटा देंगे। और इस चीज को ध्यान देना। यस, तो ये हमारा हो गया इनपुट आ गया। हमने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स पे काम कर लिया, इनपुट हो गया, डिजाइन ऑफ द बोर्ड हो गया, हमारा बोर्ड भी डिजाइन हो गया, इनपुट कहाँ पे वैल्यूज प्रिंट होंगी बोर्ड में वो भी हमने डिजाइन कर लिया। अब आ रहा हमारा इस फ्री स्पेस देयर। फ्री स्पेस चेक करना पड़ेगा ना बार बार कि कोई फ्री स्पेस है या नहीं। अगर अगर होगी फ्री स्पेस तो गेम चलती रहनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो गेम वहीं पे रुक जानी चाहिए। तो इसके लिए हम पहले एक फंक्शन बना लेते हैं। मैं यहाँ पे सॉरी मैं इस साइड फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ। सो यहाँ पे हम फंक्शन ले लेते हैं डेफ स्पेस इज सॉरी फ्री। सो यहाँ पे हम पैरामीटर पास कर देंगे पोजीशन का। ये पोजीशन चेक करेगा कि फ्री पोजीशन है या नहीं है, या फ्री स्पेस कोई है या नहीं। तो यहाँ पे ये रिटर्न कर देते हैं हम वैल्यू यहाँ पे बोर्ड की पोजीशन, और यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे दी। अब इस फंक्शन को नीचे डिफाइन करेंगे, डेफ इज बोर्ड फुल। इट्स मैंडेटरी कि कोई भी अगर आप इस तरह का फंक्शन लिखो तो उसके फर्स्ट लेटर्स को कैपिटल लिख दो, ताकि कोड में कोई दिक्कत ना हो उसे पहचानने के लिए कि कौन सा फंक्शन कब कॉल हो रहा है। बोर्ड। और ये मैं इसको पूरा लिख लेता हूँ पहले, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये है क्या एक्चुअली में। काउंट, जिसमें हम दे देंगे एक एम्प्टी स्ट्रिंग, और एम्प्टी स्ट्रिंग की वैल्यू को दे देते हैं हम <1। ठीक है, ओके। तो इसमें हम दे देते हैं रिटर्न फॉल्स, और एल्स रिटर्न ट्रू। सो ये क्या किया है मैंने, मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि ये रहा कोड। तो जैसे कि बोर्ड की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वैल्यूज हैं। तो अगर जो काउंट की वैल्यू आ रही है 1 से कम है वो, यानी कि इसमें एम्प्टी स्पेसेस अभी भी खाली हैं, कि 2 स्पेस खाली हैं, 3 स्पेस खाली हैं, जितनी भी खाली हैं, तो ये गेम चलती रहेगी। तो ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। अगर एल्स
कोई भी वैल्यूज खाली नहीं होंगी, ये भी फ्री है, ये भी फुल है, ये भी फुल है, हर जगह इनपुट हो चुका है हमारा, तो रिटर्न कर देगा ट्रू कि अब बोर्ड में कोई भी स्पेस खाली नहीं है। हम आगे की प्रोसेस के लिए काम कर सकते हैं कि आगे क्या डिसाइड हो रहा है, कौन जीत रहा है कौन नहीं, वो हम आगे वाली वीडियोस में डिसाइड करेंगे। बट हमारा फर्स्ट प्रोसेस जो हमने जो 3 डिसाइड करने थे कि इनपुट हो गया हमारा, डिजाइन ऑफ द बोर्डिंग भी हो गई हमारी, और इस फ्री स्पेस देयर। हम आगे की वीडियोस में काम करेंगे कि हु इज द विनर और प्लेयर मूव एंड कंप्यूटर मूव। फिर उसके बाद की मूवीज में वीडियोस में आगे ऐसे ऐसे काम करते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।